Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the Sunday storytelling session. I am Sneha Bakkal, birth doula, birth attendant, practicing in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, and my birth experience has got me to this work. And I'm so glad that every Sunday we have someone to just empower us with their birth experiences and stories. So today I have a very, very, very special guest. She's Meenakshi. Meenakshi is basically like she loves to call herself that now she's a Noidian, but she is from Sri Ganganagar, and she has done her masters in social work from Delhi School of Social Work, and then worked with Reliance Foundation in tribal parts of Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan. Left that job, did two businesses, left them, got married, and decided to raise a family. And hence, 2021, she is a stay-at-home mother who's also raising her beautiful children. So she have three children now, and we are going to dive into directly the story of her twin births and also the third mysterious pregnancy. So here, kudos to you, and let me pin you now. Welcome again, Meenakshi. Thank you, It's Sneha. all yours. हाँ, थैंक यू। इतने पहले तो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत मोटिवेट किया आपने मुझे, बहुत इंस्पायर किया। और हमारे ग्रुप में यू वुड ऑलवेज इनवाइट कि अरे कम सिस्टर्स, लेट्स शेयर योर स्टोरी, हमें और लोगों को बताना चाहिए। देयर आर मोर ऑफ अस हु वांट टू हियर एंड हु नीड टू हियर दिस। तो मुझे लगा कि यार बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहेगा एंड प्रोबेबली आई नेवर हैव टाइम, so why not do this? So I just thought कि now my little one is going to be 1 year. Wow. In 2 weeks time, and she's very independent, and I can keep her with somebody for 3-4 hours, so I have that much time now. So I thought now is a good time to answer your call and say ki, okay, who wants to join this. Thank you so much for accepting my request and coming forward and taking this ahead. It is only because of these you all mothers where you coming up upfrontly and speaking about your bold stories and not fearing what people are going to talk about. So thank you so much. So let's start with your story with the twin pregnancy. Yeah, so twin pregnancy was a bit of, I would say, so kya tha ki, I left my second business, which I started with my husband because of COVID. We couldn't take it further. It was completely a space-based business. So we thought, okay, we shut the shop, and we were just trying to figure out, like, he went back into his job, and I was thinking, what is it that I really want to do ahead? So family has it has always been a very, very important part of my life. So I thought, why am I not thinking about starting a family? It's been 2.5 years. I was married by that time, and I was like, what is it that पता नहीं बार-बार ये बार-बार हो जाता है, इसको ठीक करो। So I thought, somebody's phone needs to mute. So then I asked my husband that, I would like to start a family now, and are you on board? So thoda sa, he was like, no, I need some time, etc., etc. So I told him, I'll give you 6 months. You prepare yourself because I want to now have kids. So he was like, ठीक है. But in those 6 months, I was sure because I was 32 when all of this happened. And medical may they already start telling you कि after 30 you can't have kids. It's an age where you need a lot of medical assistance, etc., etc. तो मेरे दिमाग में भी वो सब था. But I never wanted to go through that route. So that's when I started researching about what options do I have. So I discovered a lot about the ancient methods of conception and how can you plan your conception, etc., etc. तो मैंने उस पे बहुत काम किया for 6 months. And then I thought कि ठीक है, चलो डॉक्टर से भी मैं हेल्प ले लेती हूँ because my periods were irregular. So I went to see a doctor. और पहली मीटिंग में ही मेरे को लगा कि मेरे को इसके पास दोबारा नहीं आना है,
क्योंकि all kind of things that she told me was very discouraging. It was so discouraging that when we came out, my husband was like, क्यों, why have we come here? What do you think कि क्या हो जाएगा ऐसा कि अगर तुमको 3 महीने के अंदर अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं, what is it that will miss out upon? And we are not machines. It will happen when it is meant to happen. तो वो मेरे को बड़ा क्लिक किया. मैंने बोला कि ये is so right. And this woman was actually creating so much fear inside me कि मेरे को लगा कि मैं खुद से प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती. The only option that I have is either I go for IVF or before IVF they do IUF or something like that. I don't know. तो मैंने कहा कि ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं मेरे पास. And it is so much about our mindset, Sneha. जैसे ही मैंने उस mindset को change किया ना कि I'll just leave it up to the universe and it will happen when it has to happen, I got pregnant that same month itself. तो मेरा वो प्रेगनेंसी हो गया था. एंड बिकॉज आई वाज टेकिंग स्टेरॉइड्स पीरियड रेगुलर करने के लिए, I know that I got this because these babies had to come into our lives. So so I had 2 babies, like twin, 2 embryos, and the doctor said ki you have twins, but we can't confirm it before the 8th or 10th week. I don't know. She was like, sometimes one dissolves or something like that. So I thought all my hopes about normal pregnancy were shattered then and there, and I was very depressed. Seriously, I felt so let down. I thought कि अब तो मेरा मतलब normal मैं कर ही नहीं सकती. I couldn't enjoy having 2 kids at all. मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं नहीं रखूंगी. I'll give away 1 child to someone. I don't want 2 children at the same time. So my husband was like, you take some time. ऐसा नहीं होता है कि तुम अपने बच्चे को किसी को दे दो. Just let these emotions sink in and take your time. So by 3rd month मेरे अंदर acceptance आ गई थी कि okay, now I have twins, and then I started working on my health, my body, that I don't want to go through all these medicines that she was giving me. She was giving me very high progesterone. मतलब वो दिन में 2 tablets तो 3 tablets लो, and I was feeling so nauseatic. मेरे को इतना acidity और nausea रहता था. मुझे समझ नहीं आ रहा था why am I being put on these medicines. There was no explanation, nothing at all. And then she would keep telling me folic acid खाओ, ये खाओ, वो खाओ. All my tests were normal. So and that's when I stopped taking those medicines. मैंने बंद कर दी थी 3rd month onwards. मैंने दवाइयां लेनी भी बंद कर दी थी. Yeah, absolutely. So Tapasya also had twins. And me and Tapasya shared the same thing. जैसे ही डॉक्टर्स को पता चलता है ना कि आपके ट्विन बच्चा है, मतलब उसके बाद तो वो the amount of fear that they create within you. एक्चुअली क्या होता है ना कि इन लोगों को कुछ भी पता चलता है ना कि नॉर्मल से थोड़ा सा आपका डिविएट हो गया, बीट एज, बीट डायबिटीज, बीट बीपी, बीट having multiple pregnancies for that matter. So they won't leave any stone unturned into like inculcating fear within the mom. कोई उसको सपोर्ट नहीं देते हैं. वो सिर्फ ये बोलते हैं ध्यान रखो, ये खाओ, ऐसे खाओ, हम बता रहे हैं तभी खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो. तो तो मैंने उनको बिना बताए आई स्टॉप टेकिंग मेडिसिन. मैं हर महीने जाती थी. शी वुड आस्क मी कि वो और मेरे को और 2 दवाई DHA खाओ, और अच्छा 3rd मंथ के बाद वो DHA खाओ और पता नहीं क्या खाओ, वो और उसमें ऐड कर करके मेरे को दिए जा रही थी. एंड आई वाज टेलिंग मेरे को ना तब तो आई वाज फुल कॉन्फिडेंट दैट शी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ माय प्रेगनेंसी. दैट इज इट, नथिंग एल्स इज हैपनिंग. She's just giving me these medicines without even considering the fact that I have no problem at all. My kids are healthy. My pregnancy by so far is going normal. तो वो मतलब कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, अब आप ये दवाई भी ले लो. अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को एक पाउडर भी दिया कि वो पाउडर जो है वो बच्चे का बोन डेवलपमेंट करेगा, पता नहीं क्या करेगा. एंड if I tell you, by 4th month there were 10 medicine that I had to take in one day. 10 medicine. And I thought, how can this cannot be normal. You cannot be taking so many medicines for everything. And I took none, not even one, not even for nausea. मैंने उनको बोला कि मेरे को nausea फील हो रहा है. अच्छा, इसकी भी ये मेडिसिन खा लो.
वो nausea भी बंद हो जाएगा. So for everything there is a pill. You know, तो ये इसकी ये दवाई ले लो, इसकी ये दवाई. अच्छा, आयोडीन की भी दवाई ले लो कि बच्चों में 3.5 से ऊपर आयोडीन, जो तुम्हारी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आयोडीन भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ. तो मैंने कोई दवाई नहीं ली और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही. मैं इतना सोई अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, एंड आई डिड सो मच ऑफ इनर वर्क, यू नो, because most of us, we come from not very happy families. Unfortunately, we have relationship problems with families. Families are a very complex structure. So, and at that age, parents के साथ बहुत सारे relationship होते हैं. So when you are pregnant, your relationship with your parents, they actually come on surface a lot. And that was something that I was very very mindful of कि मेरे को जो मेरे relationships हैं अपने parents के साथ, that I need to heal, because that is something which is my cord. And when I'm bringing these two lives into this world, it is very important that my own source is healed before I bring another creature into this life. तो मैंने ना वो बहुत, the inner work I did was a lot, I would say. The only two things that I did was inner work and sleep. I slept a lot through my pregnancy because I felt mentally tired constantly. My two previous startup had failed. We had very very less money at that time when I was pregnant. So you know, being into that stage, जब आपके hormones इतने active होते हैं, constantly आप anxiety में रहते हो कि कैसे होगा कैसे होगा. So that was thing. I was living alone, so there was my siblings were here with me, but they were younger to me, and pregnancy was not their experience, right? So all in all, I was alone in that sense. So that sometimes felt lonely because मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, ना मेरे पेरेंट्स से और ना इन लॉज की साइड से. So all those things, I slept a lot, I listened to my body, I slept a lot, I kept my everything in this head. I don't know the kind of variety, diversity I had in my food around that time, because my husband is from Assam. So the food diversity in Assam is very rich. It's humongous, I would say. There are so many types of plants and kind of rice varieties. I included meat into my diet. Before that, I never had. I was a vegetarian person. I started eating fish and eggs and lot of plants and dry fruits. तो मतलब डाइट पे मेरा बहुत फोकस था, बिकॉज मेरे को मेडिसिन के रूट पे नहीं जाना था, एंड आई हैड टू मेक श्योर कि मेरे बच्चे और मेरी तबीयत हेल्दी रहे. एंड दैट हेल्प मी अलॉट. आई हाइड्रेटेड माई सेल्फ अलॉट. उसके अलावा मैं सोई और मैंने अपने इनर जो मेरे प्रॉब्लम से विद माई पेरेंट्स, दैट आई रिजॉल्व्ड. यू नो, एवरी डे माई होल अटेंशन need to do it. And when she kept telling me कि हाँ मैं नॉर्मल करा दूंगी, मैंने सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं. तो मैं उनसे कौन से मीनाक्षी, हमको शायद आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है. is it? थोड़ा नेटवर्क का रेडनेस दिखा रहा है आपके. Okay, wait, I'll connect with another. Can you hear me, Sneha? Yeah. But your video is stuck. अच्छा, okay, 1 minute. अभी चालू हुआ है वीडियो? जी जी. वीडियो स्टक है, मतलब we cannot see you move or talk. अच्छा,
मैंने अच्छा। तो कर दिया वाईफाई पे। Okay, let me check mine. Video is not. Video is not stuck. So Rashi saying we can hear you. So we are good. Yeah, continue, Meenakshi, continue. I don't know. Rec is on, but she's on. अच्छा, recording is on. Yeah. Yeah, ठीक Meenakshi, है, we can hear you. ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर, है ना। तो 9 महीने मेरे इस तरीके से निकले। जब मैं 36 वीक में थी तो मैं उनसे बार बार ये मेरा क्वेश्चन उनसे हमेशा रहा है कि आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, कैन यू हेल्प मी विद दैट। एंड शी वुड ऑलवेज टेल मी हाँ हाँ जब टाइम आएगा तब देखेंगे, हाँ हाँ जब टाइम आएगा तब देखेंगे, डोंट वरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी तो नॉर्मल होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, शी इज कॉन्फिडेंट। 36 वीक में जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि वी आर गोइंग फॉर सिजेरियन सेक्शन एंड आप मेरे को डेट बता दो कि आप कौन सी डेट पे आ सकते हो। द बेबी इज 36 वीक्स नाउ एंड यू हैव ट्विन बेबीज, आई वोंट आस्क यू टू टेक रिस्क एट दिस एज। You are not a young girl, you're not 22, you're not supposed to have a normal birth. I would say that let's go for a C-sec and I would suggest we do it this. I am free on this date. तो आप ऐसा करो, इस डेट पे जाके हॉस्पिटल में पैसे जमा करा दो और ये 5 दिन आप इनमें से कोई भी एक डेट बुक कर लो और आप जो है अपना सामान लेके आ जाओ। और मैं वहां पे मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है ये। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि बट मेरी रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं। तो शी वाज लाइक हाँ हाँ रिपोर्ट तो नॉर्मल है, रिपोर्ट का क्या है। तो मैंने बोला कि बच्चे की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, दोनों बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल है, हाँ हाँ सब कुछ नॉर्मल है। बट इस उम्र में तो 33 में कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है ट्विंस की, कोई भी हॉस्पिटल वाला तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा। मैंने बोला बट यू ओनली सेड कि हो जाता है नॉर्मल इजीली। एंड शी वाज लाइक कि देखो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, मेरे को आर्गुमेंट में नहीं जाना है। अगर आपको सिजेरियन कराना है तो मेरे पास ये डेट है, आप आ जाओ। अगर आपको नहीं कराना है तो ये पेपर रहा आपका, आप इस पे लिख के दे दो कि नाउ ऑनवर्ड्स आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके और बच्चे के लिए। तो मैंने बोला ओके ठीक है। मैं सो माय हस्बैंड सेड कि ठीक है हम लोग डिसाइड करके हॉस्पिटल में बात बात करके आपको बताते हैं, बिकॉज हमें उनसे भी बात करना पड़ेगा। एंड सो उन्होंने थोड़ा डाउज ऑफ कर दिया एंड वी केम आउट। तो हम लोग बैठे हैं दोनों गाड़ी में, घर आ रहे हैं एंड देन ही सेइंग कि व्हाट डू यू थिंक नाउ। वो तो बोल रही है कि वो नहीं करेगी। तो मैंने बोला कि नो नो आई डोंट, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज को। I don't think, she was clearly projecting her fear onto me and she cheated on me. This was clear cheating, right? You could have been honest and told me from the day one, ki, see, these are your options. As far as I am concerned, this is how much I can do. Or iske beyond, if you want something, you go somewhere else and look for your options. That would have been a dignified way. Here, what she did was, she humiliated me. She kind of body shamed me. एज को लेके भी उन्होंने मेरे के ऊपर डाला। एंड आई टोल्ड हर ऑल्सो कि मैंने ना 22, आई हैव सीन वुमेन, गर्ल्स हु आर 22 years एंड आई नो हाउ मच they can birth naturally and I know my capacity also, and I know that at this age there wouldn't have been a better time for me to birth normally with a conscious mind and a healthy body otherwise, right? So this is the best time. अगर आप मेरे को नहीं हेल्प कर सकते हो फाइन, इट्स ओके, आई एम गुड विद दैट, बट दिस इज नो वे टू टॉक। सो शी वाज लाइक नो नो आई डोंट नो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने मेरे को ये सब बोल के, मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप तो हस्बैंड को भी फिर मैंने बोला कि तुम, वो अपना डर मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है, मेरे को डर नहीं लग रहा है। मुझे नहीं डर लग रहा है कि मेरे 2 बच्चे हैं और वो नॉर्मल पैदा नहीं हो सकते हैं। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं है। वो मेरे को डरा रही है, वो क्लियरली डरी हुई है। उन्होंने इतना ओवर प्रॉमिस किया सबसे पहले
कि मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कराती आई हूँ, मैं तो लेडी हार्डिंग में रही हूँ इतने साल तक, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने सब कुछ सेल किया। नाउ व्हेन द टाइम हैज केम, वो अपना पैर पीछे खींच रही है, मैं तो आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग जो मैं पहले से बोल रही हूँ। तो मैं इस सी सेक्शन के लिए नहीं जा रही हूँ, एंड कुछ नहीं होगा। सो देन वी वर लाइक व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव। तो नूतन मैम का मैंने ना प्रेगनेंसी क्लासेस ज्वाइन किया था, लमास क्लासेस, एंड नूतन मैम हैड टोल्ड मी कि देखो दिल्ली एनसीआर में तुमको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है, सब लोग ट्विन का नाम सुनते ही सब बोलेंगे सिजेरियन करेंगे। द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन हैव इज सीताराम भारतीय में चली जाओ तुम, वहां पे देर आर थोड़े चांसेस हैं कि वो लोग कंसिडर कर ले, क्योंकि तुम्हारा कोई हेल्थ इशू है नहीं, तुम अभी तक चल फिर रही हो आराम से। लेकिन किसी भी कीमत पे तुम 38 वीक से पहले मत मानना फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर। तो मैंने बोला ठीक है। सो नूतन मैम हैड गाइडेड मी, एंड उन्होंने मेरे को वो हॉस्पिटल का नाम भी दे दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके वहां पे चली गई, और मैंने उनको जाके बोला कि देखो सिजेरियन तो मेरा कहीं पे भी हो जाएगा, मैं नोएडा में रहती हूँ, कुतुब मीनार के पास है, विच इज अबाउट 1.5 घंटे का रास्ता फ्रॉम वेयर आई स्टे। तो मैंने बोला कि मैं इतना दूर ट्रेवल सिर्फ नॉर्मल बर्थ के लिए करूंगी, अगर आप मेरे को हेल्प करोगे तो ठीक है, अदरवाइज ये मैं वहां से भी सिजेरियन में वहां से भी करा सकती हूँ। तो देवर लाइक अच्छा ठीक है हम देखते हैं। फिर उन्होंने मेरी फाइल वाइल देखी, उन्होंने खुद मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, बच्चों के सब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह लिया, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप तो ठीक हो अभी, तो ठीक है कर लेंगे नॉर्मल। तो मैंने बोला ठीक है। ये 36 वीक का था, 36 वीक 3 डेज। जब मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया, मैंने बोला मैं नहीं जा रही हूँ वहां पे। मैंने उनको ये भी बोला कि आप देखो द काइंड ऑफ मेडिसिन शी हैज बीन गिविंग मी, कितनी दवाइयां वो मेरे को दे रही है, तो शायद वो पता नहीं, उन्होंने मेरी दवाइयां भी बंद कर दी कि नहीं नहीं तुम्हारा तो सब कुछ नॉर्मल है, तुमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि वो इतना क्यों मेडिसिन वगैरह दे रही थी तुमको। और अब बस वीकली चेकअप करने होंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, आप 36 वीक से ऊपर हो अभी, तो वीकली आपको आके चेक कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, इन बिटवीन अगर आप लेबर में आते हो तो ठीक है, अगर नहीं आते हो तो 38 वीक के बियॉन्ड वी विल गो फॉर इंडक्शन। तो ये सब मेरे को उन्होंने पहले बता दिया था सर्विस, मुझे पता था कि मेरा भी यही ऑप्शन है, एंड आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ रेडी। एंड 38 वीक और 4 डेज तक उन्होंने वेट किया। शी वॉज लाइक मैं 39th वीक में नहीं जाऊंगी, बिकॉज देन मेरे ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। सो बट शी वाज कोऑपरेटिव। एक होता है ना स्नेहा कि आप मतलब यू आर जेंटल, यू कोऑपरेटिव, आप पहले से बता रहे हो कि दीज आर माय लिमिटेशंस एंड दिस इज हाउ मच आई कैन डू। सो आई वाज आल्सो लाइक, मुझे भी पता था कि मेरे भी ऑप्शन इस स्टेज पे आके लिमिटेड है। तो मेरे को लगा ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हो तो आई एम ऑल्सो ओके। सो 38 वीक 4 डेज पे मेरे बच्चे इंडक्शन से उन्होंने किया था, तो इंड्यूस था मेरा लेबर, बट दे वर बोर्न नॉर्मल and I had normal delivery. So yeah, that was first birth. Yeah. So yeah, you can now continue with your postpartum and then the mysterious pregnancy and then the birth. पोस्टपार्टम इंडक्शन, तो ऐसे मुझे लगता था कि सिजेरियन के बजाय हम इंडक्शन जो ठीक है अच्छा ऑप्शन है, सिजेरियन से इंडक्शन अच्छा है, बेटर है। उन्होंने मेरे को इंड्यूस किया रात को 10 बजे, और मुझे तो तपस्या ने बताया कि मेरे को क्या क्या इंजेक्शन लगे थे। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आ रहा है। मतलब मैं बेहोशी की हालत में चल रही थी, बिकॉज वो वाला फेज हमारा ऐसा होता है ना, एज वुमेन वी आर इन अ डिफरेंट स्टेज। मैं ऑल्टरनेट रियलिटी में थी, बट मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत बहुत ज्यादा मुझे इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, एंड माय बॉडी डजंट नीड देम। मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था उन मेडिसिन से, मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि मुझे बिस्तर से उठ जाने दो, आई नीड टू वॉक, मुझे खड़े होना है। वो मेरे को पकड़ के फिर बिठा रहे हैं कि नहीं फीटल हार्ट रेट, हम फीटल हार्ट रेट लेके रहेंगे, फीटल हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैं और विद ऑल दिस फीटल हार्ट रेट वाज नॉर्मल थ्रू आउट। एक बार भी बच्चे की हार्ट रेट है ना ऐसे भी थोड़ा फ्लक्चुएट नहीं हुई है, बहुत कंसिस्टेंटली, बिकॉज मैं इंटरनली, 2 नर्स थी वहां पे,
एंड दे वर गॉड सेंट, बिकॉज मेरे को इतना मन से मैं चाहती थी कि मेरा नॉर्मल वो बच्चा, दे वर गॉड सेंट टू मी ऑनेस्टली। दे सपोर्टेड मी सो मच, इतना उन्होंने मुझे, दे वर लाइक माय मदर फिगर। उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तू बिल्कुल, तू ये सब दवाई ववाई के ऊपर ध्यान मत दे, तेरा बच्चा है, जैसे तू बोलेगी, जब तू बोलेगी ना तब भी ये बच्चा आएगा, तो तू मतलब कनेक्ट विद गॉड। And I'm also praying. There was a Christian nurse, and she started reading Bible का verse for me, and she was like, तू अभी ये तो सब मत सोच कि ये पुश नहीं हो रहा है, बच्चा आगे नहीं आ रहा है, you just surrender, और तू ऐसे बोल कि मैं तेरी माँ हूँ and I want you to now come on the earth side, and God will do miracle, don't worry. And I still have like tears in my eyes when I think of that. मेरे को लगता है उस लेवल का सपोर्ट अगर हम एक न्यू मदर को दे सके, द काइंड ऑफ मदरिंग दैट शी डिड फॉर मी, मेरी खुद की माँ पूरे प्रेगनेंसी में मेरे साथ नहीं थी, तो मतलब दैट वुमन वाज माय मदर। एंड देन देयर वाज अनदर नर्स, तो वो मेरे को जब रात को इंडक्शन चल रहा था मेरा, तो मेरे को बोल गया, मैडम कुछ डरने का बात होता नहीं है, मेरे बच्चे तो सरकारी सफदरजंग में हुए हुए हैं और एकदम नॉर्मल, वहां पे कौन इतना बैठ के अटेंड करता है, बार बार आके आराम से हो जाता है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। या शी वाज माय डॉला, यू आर सो राइट स्नेहा, वेरी ट्रू। जो मैसअप किया था ना सब डॉक्टर्स ने मिलके किया था, नर्सेस मतलब बहुत ही स्वीट थी। मैं उनको बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे को इस बेड से उठ जाने दो, क्योंकि वो बेड पे लेटे लेटे मुझे जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, मेरे को डर लगने लग गया था कि मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बिकॉज मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट बैठी हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मेरी बॉडी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है, बच्चा आगे आ ही नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ मुझे उठ जा। देयर वाज अ नेचुरल अर्ज ना कि उठ के आप वॉक करो, स्क्वाट करो, नहीं मेरा हाथ पकड़ के बोल रहे नहीं आप बैठो इधर, ये फिटल हार्ट रेट नहीं इधर से उधर होना चाहिए। कभी कभी मेरा मन कर रहा था कि मैं वो सारे तार वार तोड़ के और भाग जाऊं, लेकिन वो गुड गर्ल वाला जो इमेज होता है ना कि ऐसा काम नहीं करना है, वो वॉइस मतलब बहुत स्ट्रांगली बैठी। फिर मैंने उनसे ना बहाने लेने शुरू कर दिए कि मेरे को बाथरूम यूज करना है, और दैट वर्क। तो मैं हर 2 मिनट के बाद बोल रही हूँ कि आई नीड टू गो टू द बाथरूम। तो बाथरूम में जाके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लोग भी नहीं रोक पा रहे, बिकॉज इनको भी डर लग रहा है कि यहाँ पे मेस क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी बोल रहा है अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। फिर वो डॉक्टर मेरे को आके बोल रही है ऐसे बार बार बाथरूम नहीं जाने। मतलब मुझे आई नीड टू गो, मैं क्या करूं अब। तो बट बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को एपिसियोटोमी भी किया, ये मुझे तपस्या ने बताया, ये भी मुझे तपस्या के थ्रू पता चला कि अच्छा मेरे साथ ये प्रोसीजर भी हुआ हुआ है। तो तो मीनाक्षी फिर उन्होंने कैथेटर लगाया था क्या when they were not allowing you to go? कैथेटर कहाँ पे समन? मतलब be able to urinate on the bed itself. नहीं नहीं वो सब नहीं लगाया था मेरे को। हाँ आई वॉज डूइंग रिलीविंग माई सेल्फ। जब उन्होंने मुझे बोला कि अब नहीं उठना है, तो फिर मैंने फिर से, डॉक्टर ने आके मेरे को बोला कि अब नहीं तुम ऐसे बार बार बाथरूम नहीं जा सकती हो। तो मैंने बोला मैम प्लीज आप मेरे को बाथरूम जाने से मत रोको, मेरे को मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है चलो ओके। तो कैथेटर वगैरह मुझे नहीं लगाया था। 2-3 times I peed on the floor itself and nurses were clearing that. Yeah, they were very sweet उस टाइम पे। हाँ वो फिर अंडरपैड्स लगे होते हैं ना, नहीं अंडरपैड्स नहीं लगे होते हैं नहीं नीचे। नहीं मेरे कुछ भी नहीं लगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ आई हैड नथिंग मेरे मतलब पास। those white sheets that they put on the bed, no, so you are able to, whatever blood comes, it is absorbed by the sheets. वो उन्होंने ना मेरे को लास्ट में लगाया था, वो जो अच्छा। व्हाइट चीज वगैरह है ना, दैट दे हैड पुट, जब उनको समझ में आ गया, बिकॉज वो चेक करते हैं ना बार बार आके फ्रीक्वेंटली कि कितना डायलेशन हो गया, कितना डायलेशन हो गया। सो जैसे माय किड्स वर बोर्न एट 5 PM, तो आई थिंक दैट वाज पुट अराउंड अराउंड आफ्टरनून 2 to 3, when they were like कि अभी डायलेशन हो गया है और बच्चा कभी भी आ सकता है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि 2 बजे के बाद, बहुत ऐसे एक्सपेक्ट करने लग गई थी कि बस हो गया है नेचुरल, बच्चा अभी आया अभी आया अभी आया। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने तब किया था, बिफोर दैट नहीं लगाया था कुछ भी।
अच्छा मुझे नहीं पता बेडशीट के नीचे अगर कुछ लगा होगा तो, बट तब तक कुछ यूज नहीं किया था। दैट्स व्हेन दे गेव मी। सुबह तो वो एक हॉस्पिटल वाला जो कॉटन, वो जो पतला सा शीट होता है, वही पहन के मैं वही यूज कर रही थी, तो वही था। Also, when we were checking your dilation, तो मतलब internal exam कर रहे थे बार बार? हाँ हाँ हाँ। तो वो इंटरनली आके चेक कर रहे थे बार बार कि कितना हुआ है डायलेशन। बहुत ज्यादा फिंगर इंसर्ट करके तो नहीं किया था, वो 2 बार ही हुआ मेरा, अगेन आफ्टर ये 2 बजे के बाद। बट उससे पहले शी वाज जस्ट चेकिंग आउट कि कितना डायलेशन हो गया, कितना डायलेशन हो गया। उससे पहले एक्चुअली नहीं ज्यादा चेक किया था, 2 या 3 बार उन्होंने मुझे चेक किया था। लास्ट के टाइम पे। रात को तो मैं अकेली थी, तो नर्सेस तो वैसे भी कुछ नहीं करती हैं, दे वर वेरी स्वीट, तो दे वर लाइक लेट योर लेबर प्रोग्रेस नेचुरली। फिर उन्होंने ना, जब डॉक्टर आई थी दोपहर में 12 बजे, तो शी चेक मी वंस एंड देन शी केम एट 2 एंड तो उन्होंने ही फिर बोलना शुरू किया कि अभी तो हो गया है, बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है। उनके आने के बाद ही सारा मेसअप हुआ था, तब तक मेरा ठीक चल रहा था सब कुछ। तो फिर वो आके बार बार, तो फिर 2 बजे उन्होंने एक बार मेरे को चेक किया, फिर उन्होंने फिर मेरे को 4 बजे के करीब चेक किया, एंड लास्ट में शी वाज लाइक कि तुम्हारा लेबर स्टॉल हो गया है, जो कि वो बोलते हैं अभी सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो हमने कोशिश कर ली है सारी, अब हमें भी घर जाना है, सुबह लगे थे, 6 बजने वाले हैं, स्टाफ भी रात से बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है। वो पुश नहीं कर पा रही है, वो उससे पुश नहीं हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि क्या सच में मैं, मतलब मैं इतनी वीक हूँ कि मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि पुश कैसे करना है। वो नर्स मेरे को बार बार बोल रही कि तू ध्यान मत दे क्या बोल रहे है, तू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, तू अभी खुद के अंदर थोड़ी रहे और खुद से बात कर, उन लोगों की बात मत सुन कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर 5 बजे शी सेड कि मैं सिजेरियन के लिए लेके जाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हमने जितना करना था हमने कर लिया है, अभी सिजेरियन इज दी ओनली ऑप्शन, मैं ओटी तैयार करवाती हूँ और हम सिजेरियन के लेके जाएंगे। तो फिर एक सीनियर डॉक्टर थी वहां पे, हु हैड कम टू विजिट एंड सी कि क्या चल रहा है, मतलब सुबह से। तो शी सेड कि लेबर इनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि ये तो आई नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, तू सिजेरियन के लिए लेके जा रही है, मतलब आई थोड़ा टाइम और दे के देख ले। तो वो बोली कि मेरे को डर लग रहा है, उसने एडमिट भी कर लिया कि मेरे को डर लग रहा है, मैं अब मेरे को लग रहा है कि इससे ज्यादा अगर वेट करूंगी, स्टॉल लेबर है, प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, अगर कुछ और दिक्कत होगी तो मेरे को ये रिस्क नहीं लेना है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन एनी फर्दर, मेरे लिए सिजेरियन इज द ऑप्शन, इफ यू कैन हेल्प मी। तो सीताराम में दे हैव दिस पॉलिसी कि द पेशेंट कम्स, बट ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्टर आपको देखेगा, द टीम ऑफ डॉक्टर्स कैन टेक योर केस बिकॉज दे फोकस अ लॉट ऑन नेचुरल बर्थ, उनको ऐसे है कि हम नेचुरल बर्थ आपका करा देते हैं। तो उस टाइम पे ड्यूटी पे जो डॉक्टर होगा दैट विल अटेंड टू यू, नॉट नेसेसरीली द डॉक्टर दैट यू हैव बीन गोइंग टू थ्रू आउट। तो उनका ऐसा पॉलिसी था। तो शी सेड कि मेरे से तो और हो नहीं रहा है, तो अगर आप मेरे को हेल्प कर सकते हो तो आप देख लो इस केस को, इसके आगे मेरे पास सिजेरियन इज द ऑप्शन। तो फिर वो सीनियर डॉक्टर ने आके मेरे को बोला कि वैक्यूम का ऑप्शन है मेरे पास, तुम्हारा लेबर अभी और प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, तुमको लगता है डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। मुझे क्या पता क्या वैक्यूम होता है, कैसे होता है। तो मैंने बोला मेरे को सिजेरियन नहीं कराना अगर वैक्यूम, मुझे नहीं पता क्या करना है, और आपको जस्ट हेल्प मी विद दी नॉर्मल डिलीवरी। तो उसने बोला ठीक है वैक्यूम लेके आओ। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बच्चे की सिर के कुछ होना जाए या ये सब कोई इंजरी विंजरी, शी सेड आई विल हैंडल इट। शी वाज कॉन्फिडेंट, तो उन्होंने वैक्यूम से मेरे को पहला बच्चा निकाल दिया, और मेरा दूसरा बच्चा पहले के साथ ही आ गया था। तो देयर वाज नथिंग, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब वो एक और पुश के साथ आ गई थी बाहर। सो दैट्स हाउ इट वाज। पोस्टपार्टम मेरा बहुत ज्यादा नहीं रहा था, मुझे बहुत इश्यूज नहीं आए थे पोस्टपार्टम में। बट एक इश्यू जो मेरे को अब रियलाइज हो रहा है मुझे हुआ था, दैट वाज आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद माय किड्स, विद माय चिल्ड्रन। मेरे को बहुत एलिनिएटेड फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आई डोंट नो हु दे आर, आई डोंट वांट देम,
एंड मुझे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर थोप दिया है किसी ने ना, और एक ही रात में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है कि मेरे को सुबह 2 बच्चे लाके पकड़ा दिए हैं कि अब आप इनको फीड करो। तो दैट वाज अ चैलेंज एंड द अदर वाज लैक्टेशन। मेरे को 2 बच्चों के लिए दूध आने लग गया था, और उन्होंने मेरे को हेल्प भी किया। अगेन वो नर्सेज जो थी देवर लाइक कि आप खुद फीड करो, जितना आप करोगे दूध आएगा, बॉटल पे डिपेंड मत होने देना बच्चे को, पलाटे से पिलाओ। बट उन्होंने फॉर्मूला देना चालू कर दिया था वहीं पे। लेकिन वो मेरे को नर्स मेरे को वहां पे बोले, मतलब उसने मेरे को हेल्प भी किया कि हैंड एक्सप्रेस से आप सप्लाई स्टेब्लिश करने की कोशिश करो। बट बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, जितना हैवी मेडिकेशन मुझे दिया था, मेरे को मतलब दूध आ ही नहीं रहा था। मुझे 2-3 महीने लग गए उस सप्लाई को बनाने में। मेरी बॉडी दोनों बच्चों के लायक दूध ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी। सो ये जो 2 चीजें थी, दैट वेज अगर मैं देखूं तो इट वाज अ वेरी रॉब्ड एक्सपीरियंस, जो मेरे को मतलब उस वक्त मुझे लग रहा था चलो मैं यहाँ पे आ गई, इंड्यूस हो गया लेबर, ये हो गया वो हो गया। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि किस तरीके से मुझसे मेरी एजेंसी लेके कंप्लीटली, और अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेविंग मी और हेल्पिंग मी, मेरे को मतलब इतनी हैवी डोजेस पे रख के, एंड आई हैड टू गो कंप्लीटली अगेंस्ट माय नेचुरल फ्लो, जिस रिदम में मैं चल रही थी, सो मच सो दैट कि मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, द होल एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी वाज लॉस्ट। मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया कि कहाँ से आ गए हैं ये 2 लोग, कौन है ये, क्या कर रही हूँ मैं इनके साथ। एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हर एंड शी वुड बी लाइक ये तो नॉर्मल है, सबको फील होता है, आफ्टर सम टाइम तुमको यू विल फील नॉर्मल, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। लेकिन अभी मुझे पता है, सो तपस्या से मैं मिली थी होम स्कूलिंग के ग्रुप में, एंड मी एंड तपस्या, दैट टाइम माय किड्स वर 1.5 year olds। एंड मेरे को था कि मेरे को इन्हें होम स्कूल कराना है। नोएडा, दिल्ली हैज अ वेरी ब्यूटीफुल होम स्कूलिंग कम्युनिटी। आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग देयर वंस आई मेट तपस्या, and me and Tapasya, we talked about, so she was sharing about her experience of twin pregnancy, birthing one child at home, and how she came into this field. That उस was वक्त in my place, no? no, before that we had met, me and Tapasya Okay. had met. हाँ, so that was this happened, बिजोम करके एक फार्म था यहाँ पे which is closed now। तो ये वहां पे हुआ था। सो वी हैड अ होम स्कूलिंग गैदरिंग, तो वहां पे मैं तपस्या से मिली थी। और मैं और तपस्या, तब तक मैं सेंटम और बाकी बर्थ विलेज और इनके थ्रू मुझे थोड़ा दौला का और ये सब समझ में आ गया था। आई अंडरस्टूड दी, जो ये ऑल्टरनेटिव वे ऑफ गिविंग बर्थ है वो थोड़ा समझ में आ गया था मुझे। तो मैं तपस्या के साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो गया, और हमने थोड़ी बात की वहां पे कि मेरा कैसा था, उसका कैसा था। एंड शी सेड कि इफ यू हैव सच एक्सपीरियंस, तो मेरे को लगता है कि लेट्स कम टुगेदर, और ज्यादा जितनी ज्यादा ये बात हम लड़कियों तक, औरतों तक पहुंचा पाए, दैट देयर कैन बी अ बेटर वे टू experience your birth. So let's do that. So I said to Tapasya, no, yaar, I don't think I'm cut out for that, because it's a very personal experience, and a lot of people get triggered, a lot of women get triggered because the time is like that, no? So I don't want to say anything to anyone. So Tapasya said, okay, then it's your call. And that was it. Then we met at Saman's house. Saman, that was our second meeting. So then we met at Saman's house. Saman had organized a group, and she said, let's all of us who are in Delhi, let's meet. And so Tapasya had come there. I had also gone, and other women from Jinan, CKF, we had all gone. तो वहां पे उस दिन फिर तपस्या ने अपने बारे में थोड़ा बताया, एंड तपस्या ने बोला कि मैं पोस्टमार्टम बोन क्लोजिंग सेरेमनी भी करती हूँ, विच हेल्प्स अ लॉट इन एलिवेटिंग योर पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो मैंने तपस्या से उस वक्त ये बात की थी। तो मैंने तपस्या को बोला कि कैन यू डू इट फॉर मी, बिकॉज आई फील लाइक आई हैव सम पीपीडी, नॉट वेरी सीवियर, लेकिन मेरे को थोड़ा है इश्यूज। तो शी सेड या आई वुड बी हैप्पी टू डू इट, आई शेयर विद यू मैंने समन का कैसे किया था। तो तपस्या ने मुझे समन का वो सारा भेजा रिचुअल, एंड शी सेड लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी।
So this was it. And next, when I am messaging Tapasya, I texted and I said, I think we'll have to postpone the postpartum because I have discovered that I'm pregnant with the third child. So And this is do like, it. And I came for your तुम्हारी twins का yes, birthday था second. And हाँ, by then also nobody had any idea. Everybody was thinking you're putting on a little weight. या और तब से मुझे बोल रही है कि व्हाट डू यू मीन डिस्कवर्ड द थर्ड चाइल्ड. So I told Tapasya, I don't know. I have a baby in my stomach and I have no idea how many months I am into, but for sure it is not less than 6 months. This was the day, Saman, when you had come. We were celebrating my kid's birthday. मैं हील्स वील्स पहन के घूम रही हूँ आराम से बच्चों को, और सब लोगों को सोच रहा है, मैं भी सबको बोल रही हूँ कि आई थिंक आई हैव गॉट डायस्टेसिस रेक्टी एंड आई पुट ऑन अ लिटिल वेट बट आई थिंक इट विल गो. और उस दिन मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने, एंड देयर वाज अनदर एल्डरली वुमन, so she actually told me, she said, I think you're pregnant. I said, no auntie, I can't be pregnant, this can't be possible. So she was like, no बहुत बार ना you tend to get pregnant और तुमको realize नहीं होता है. So I was like, क्या बात कर रहे हो? मैंने उस दिन रात को आके and I sat with my body and I put hands on my tummy and then I could feel the child, मतलब बच्चा ऐसे घूम रहा था. Then I was like, what? Went into the bathroom, I checked again. मैंने कहा ये तो मेरे पेट में बच्चा है. And I texted Tapasya. Tapasya is like, what do you mean discover that you. After that, I said, my in-laws are here. I won't come. इनको जाने दो एक बार. I'm not comfortable. इनके जाने के बाद मैं आऊंगी तुम्हारे पास. तो she was like, अच्छा ठीक है, आ जाना तुम. मैं गई 1 वीक के बाद. तपस्या ने मेरे को चेक किया एंड तपस्या मुझे बोल रही है कि मीनाक्षी तुमको कुछ तो आइडिया होगा कि when could you got pregnant. I said, I have no idea, absolutely no idea. I don't think it could be in the past 6 months because me and my husband were not sharing rooms. दोनों, वो उसका नया जॉब स्टार्ट हुआ था और उसका नाइट जॉब था. तो वो मतलब रात को 9 बजे बैठता था और 2-3 बजे वो सो रहा था. और मेरे को ऐसा था कि बच्चों का नाइट टाइम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है. तो आई वुड पुट ऑफ सारे घर की लाइट 8 बजे एंड आई वुड स्लीप विद देम. दोनों बच्चों को लेके मैं उनके साथ सो जाती थी ताकि मैं खुद की भी स्लीप कैच कर लूं. तो हम दोनों वी वर लिविंग 2 डिफरेंट लाइव्स. ठीक है. तो आई टोल्ड तपस्या, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है इन द पास्ट 6 months वी आर नॉट इवन शेयरिंग रूम्स. शी वाज लाइक बट द चाइल्ड इज not less than 6 months. So I told her कि I have no idea when this baby could have arrived. I absolutely have no idea. तो तपस्या ने मुझे बोला कि देखो अल्ट्रासाउंड कराने का एक ऑप्शन है, लेकिन बच्चा 29 से 30 वीक्स के बीच में है, उससे कम नहीं है. तो 29-30 वीक्स इज लाइक हाउ मेनी मंथ्स, 6.5 months. तो मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि इतना तो है ये बाय द साइज ना ऑफ द स्टमक. तो फिर तपस्या ने मुझे थोड़ा ओरिएंटेशन दिया. मैंने बोला देखो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा तुम ही पैदा कर रही हो, तुम आओगी, यू आर माई सपोर्ट सिस्टम. मेरे को तुम जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ये वो है मैं सब साइन करके दे देती हूँ. आई डोंट वांट एनीबडी एल्स बट यू. तो शी वाज लाइक अच्छा ठीक है लेकिन तुम सुन लो कि मैं ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ, मैं ये ओरिएंटेशन दूंगी. आई सेड हाँ हाँ यू डू व्हाट यू हैव टू डू, कंप्लीट योर फॉर्मेलिटीज, माय चाइल्ड इज कमिंग थ्रू यू. सो शी वाज लाइक अच्छा ओके फाइन. तो उसके बाद मैंने उसी डॉक्टर के पास मैं गई थी, अपनी पुरानी डॉक्टर के पास. एंड बिकॉज मेरे को एक अल्ट्रासाउंड कराना था, हाउ इज इट गोइंग और कितना महीने एग्जैक्टली टू एक्चुअली टू गेट द डेट, क्या यू नो टू गेट सम आइडिया कि व्हेन दिस प्रेगनेंसी कुड हैव हैपेंड. And ultrasound showed me. So after meeting Tapasya, I went after 10 days. So the ultrasound showed 34 weeks. It was a 34-week pregnancy. और डॉक्टर मेरे को बोल रही है कि विद इन अ मंथ you can come into labor. That is how far you have come and you have no idea when you got pregnant. I said I have absolutely zero idea that I could be pregnant throughout these 9 months.
मैं इतनी फिट थी, मैं इतनी हेल्दी थी, दोनों बच्चों को लेके मैं जगह जगह, समन के घर में गई थी, पुरानी दिल्ली गई मेट्रो मैं, में। है ना समझ, और वापिस आई, मैं दोनों बच्चों को मेट्रो में लेके आई। दोनों बच्चों को मेट्रो में लेके आना मतलब, उस वक्त ये 1.5 पौने 2 साल के थे स्नेहा। तो दोनों को ये डर गए थे दोनों कि मतलब मेट्रो की आवाज से और ऐसे ना, तो ये दोनों रोने लग गए थे। मैं खड़े होके मेट्रो में दोनों बच्चों को दोनों साइड गोद में लेके खड़ी हूँ। मेरे को लोग बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल, कोई बात नहीं। लास्ट में जब मैं मेट्रो से नीचे उतरी तो ये दोनों स्टेयर से नीचे नहीं उतर रहे हैं, तब भी मैं इनको लेके बस भगवान का नाम लेके कि मैं धीरे 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 स्टेप ले, पर मुझे कोई मतलब नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो डिस्कम्फर्ट, नो नोजिया, नथिंग, नथिंग ऑफ एनी। आई वेंट राजस्थान twice during this whole duration, and Rajasthan is about 500 kilometers from Delhi. So that means, and with kids we tend to go very slow. हमें मतलब जो 9 घंटे की जर्नी है, हम 14 घंटे लगते हैं हमें जाने में। I have completed to and fro two such journeys, 14 hours की। Again no discomfort, वहां पे भी किसी को नहीं पता चला कि I could be pregnant, nobody could guess. So this is how smooth it was, and I know how it could have happened, because by that time I was so much into following my own inner instinct, listening to my body, following my rhythm, and doing all of that. So I knew how I could have been so comfortable and relaxed. फिर लास्ट का एक जो महीना था उसमें 34th 35th वीक के बाद फिर तपस्या ने बोला डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए कीप हर इन लूप। सो मैं उनके पास जाती थी अल्ट्रासाउंड, लेकिन उसने भी मेरा नहीं कराया उसके बाद। शी वाज लाइक कि ठीक है, तू तो ठीक ही है, पहले भी शी हैड माय केस ना, तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि कुछ नहीं होगा तेरे को, तो बच्चा भी ठीक है। तो उन्होंने भी मेरे को नहीं बोला अल्ट्रासाउंड। लास्ट में उसने मुझे बोला, तो तपस्या ने मुझे बोला कि बिल्कुल मत कराना तुम। तो मैं उनको फिर बोलती रही कि अभी कराऊंगी, अभी कराऊंगी। मैंने फिर वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। फिर उन्होंने मेरे को 39 वीक्स पे बोला कि इंड्यूस कर लेते हैं। तो आई सेड मैं इस बार इंडक्शन के लिए मैं नहीं जाऊंगी। दिस इज नॉट समथिंग, मैं जिंदगी में किसी को नहीं बोलूंगी इंडक्शन कराने के लिए। इट्स सच हॉरिबल torturing experience, and I don't want to go through that hell again. I will wait. If you are ready, I'll wait until the labor happens naturally. अगर आप ready नहीं हो तो मुझे कोई problem नहीं है, it's okay. तो she was like अच्छा चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे तो पता ही था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं आना है, लेकिन तपस्या ने मुझे बोल रखा था कि यू नो रखते हैं ना, वाई डू यू वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स विद हर ना, तो ठीक है उसको बोलो कि आऊंगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो लास्ट में फिर तपस्या ने मेरे को एक दो ओरिएंटेशन दिया कि जस्ट इन केस तुम लेबर में आती हो और मैं नहीं आ पाती हूँ तो तुमको क्या करना है। मेरे हस्बैंड को बता दिया था सब कुछ। और मेरा ना लेबर 21 दिन चला है, 3 वीक्स। सो हाँ, आई थिंक दैट तपस्या कैन, पता नहीं मतलब ऐसा था, मुझे उसका साइंस नहीं पता है स्नेहा, लेकिन मेरा ऐसा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस फील होते थे, और वो कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी ना रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, रोज धीरे 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 करके। जैसे अगर आज अभी फील हुआ है तो कल फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। एंड एवरी डे आई वुड फील लाइक कि आज मैं लेबर में आ जाऊंगी, आज मैं लेबर में आ जाऊंगी, आज मैं लेबर में आ जाऊंगी। तो इट टेस्टेड माई पेशेंस, बिकॉज मेरे को हॉस्पिटल बर्थ का आदत था, माई माइंड वॉज ट्रेन फॉर दैट। तो इतना लंबा पेशेंस करना है, इतना अनसर्टेनिटी हो सकता है, इतना तुमको रिदम फॉलो करना है। मेरी बॉडी वाज नॉट कंडीशन, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं। तो मेरे को लास्ट में थोड़ा एंजाइटी होने लग गया था लास्ट के 1 वीक में। मैं तो बस को बोलूंगी यार, मैंने बहुत मतलब मैं तुमको लिटरली बता रही हूँ, मैंने बहुत इनर वर्क किया है खुद के ऊपर। इतना जर्नलिंग किया है मैंने अपने थॉट्स का, मेरे जो लिमिटेड बिलीफ हो सकते हैं उनका। बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को लेबर क्यों नहीं हो रहा है। तो तपस्या सेड कि तुम अभी भी बहुत सोच रही हो, जब तुम सोचना बंद करोगी ना तभी तुम लेबर में आओगी। तो फिर उसने बोला कि देखो मैं तुमको होम्योपैथी भी दे सकती हूँ जिससे तुम 1-2 दिन में, मुझे पता है कि तुमको लेबर हो जाएगा, बट डू यू वांट दैट।
So I said, no, let me see what else this baby wants to, wants me to realize and accept. So she said, yeah, let it be now, let it go into its own rhythm and its own flow. Why are you breaking that? Take your time. अभी 41 weeks हुआ है. Pregnancies can go up to 44 weeks. तुम्हारा वैसे भी irregular period रहा हुआ है हमेशा. So it's fine if it is getting delayed. Nothing to worry. So I said, okay, fine. Every night, for 10 days, every night, I would wake up at 2:30. That was the time when I surely was getting contractions. And everybody was left. My dog used to be with me. और उसको तो पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मतलब रहती थी मेरे पीछे पीछे कि मैं घूम रही हूँ, तो वो भी थोड़ा मेरे साथ घूमती थी. तो मैंने जिस दिन रात को 2:30 पे मेरे को कॉन्ट्रैक्शन हुए और रोज से थोड़ा सा ज्यादा हुए, थोड़ा सा स्ट्रांग. उस दिन मुझे लगा कि टुनाइट कैन बी अ डे. आफ्टरनून में भी मेरे को जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे तो रोज से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे. बट बिफोर दैट मैं तपस्या को 2-3 बार बोल चुकी थी कि मुझे लग रहा है आज मेरा लेबर आ जाएगा, आज आ जाए. तो मैंने कहा आज मैं नहीं बोलूंगी इसको, देखती हूँ कब आएगा, जब आएगा. तो तपस्या लेकिन मुझे बोली कि मुझे लग रहा है 2-3 दिन में ना. तो शी आस्क्ड मी कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा कॉन्ट्रैक्शन का कैसा सीन है. एंड शी टुक ऑल द डिटेल्स एंड शी सेड 2-3 दिन में तुमको लेबर में, तुम कंप्लीट लेबर में जाने वाली हो. एंड यू जस्ट टेक्स्ट मी वेन एवर दैट हैपन्स. मैं अपना फोन रात को भी ऑन रखूंगी एंड आई एम ऑलवेज देयर. कोई भी कभी भी तुमको लगे तो. चिली को भी शी कॉल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो एंड शी सेड कि कभी भी तुमको लगे आई एम ऑलवेज देयर. रात को भी मेरे को मैसेज करना, मैं आ जाऊंगी, बस मेरे को थोड़ा सा हाफ एन आवर लगेगा. एंड शी, बिकॉज तपस्या ऑल्सो कीप्स हर हस्बैंड इन्फॉर्म्ड एंड शी मैनेजेस हर हाउस अराउंड दैट. तो शी सेड कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए. सो आई थिंक विल टेक 2-3 days. सो आई सेड ओके. उस रात को 2:30 में उठी एंड अगेन लाइक मेरे कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल से ज्यादा थे. 3:30 आते आते मेरे कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होने लगे और क्लोजली होने लग गए. And that's when I got confident कि today is my labor day. But I wanted to spend all of that time alone. All of that time. So me and my dog were there throughout the night. मेरे पास thankfully backyard है जिसमें. So I did a lot of earth meditation. वहां पे बैठ के थोड़ा सा डांस वांस किया एंड बहुत सारी फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की. बिकॉज उस वक्त बहुत सारे इमोशन सरफेस पे आते हैं. So I allowed all of those emotions to come out and काफी कुछ किया. That was my lone time. So I did lot many things. 6:37 के अराउंड मेरे को और ज्यादा क्लोज आने लग गए थे कॉन्ट्रैक्शन. सो आई न्यू दिस इज द टाइम. 7:15 मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने के लिए दीदी आती हैं. तो शी हैड कम. शी हैज 5 चिल्ड्रन, सारे घर पे पैदा हुए हुए. तो मेरी शक्ल देख के उनको समझ में आ गया कि आपको बच्चा हो रहा है. और वो मेरे हस्बैंड को मेरे को बोल रही कि दीदी भैया को उठाओ. मैंने कहा नहीं आप किसी को मत उठाओ, आप अपना खाना वाना बनाओ और आप जाओ दीदी, कुछ नहीं होगा. तो वो बोल रही आपको आप मैंने कहा दोपहर तक टाइम लगेगा, दीदी आ जाएंगी. मैंने तो बस दीदी को बुलाया हुआ है. तो बोल रही आपको दोपहर तक का टाइम नहीं लगेगा, आपका बच्चा आने वाला है. फिर वो आके फिर मेरे को बोल रही है कि मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगी, चेक तो कर लेने दो कि बच्चा कहाँ पे है. मैंने कहा आप किसी को कुछ मत बोलो, आप चले जाओ बस. तो वो बेचारी चली गई. 8 बजे 7:30 मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया और तब मेरा मुंह मतलब लाल हो गया था और फिर मतलब वो टॉप लेवल था. तो मैंने हस्बैंड को उठाया, मैंने बोला कि तपस्या को फोन लगाओ. तो तपस्या को फोन लगाया. तपस्या ने बोला वीडियो बना के दिखाओ. तो तपस्या बोल रही है आप क्या, तुम मेरे को फोन कर रहे हो, तो बच्चा आ रहा है, मतलब आने वाला है वो, मेरे को आने में लग जाएगा उतना टाइम. तो चिली सेड कि इसने हमें अभी बताया है. तो मैंने बोला कि यार तुम लोग अभी सब लोग चले जाओ, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बच्चों को कहीं ले जाओ, आई वॉन्ट सम टाइम फॉर माई सेल्फ. तो ये लोग कोई पूल भर रहा है, कोई टब भर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो. तो तपस्या मेरे हस्बैंड से बात कर रही है और मैं अकेला मतलब
अच्छा मैं बैठ नहीं पा रही थी, है ना, तो सो लेबर इज सो ब्यूटीफुल। मैं लेट नहीं पा रही क्योंकि बच्चा मेरे को सीधा कर रहा है, बार बार क्राउनिंग हो गया था। मैं ऐसे सोने की कोशिश कर रही हूँ, बेड पे रहने का मन नहीं कर रहा, बार बार बाथरूम जा रही हूँ, बाथरूम जा रही हूँ। लास्ट में फाइनली मेरे को लगा कि मुझे बहुत जोर से ना पू करने का ऐसे हुआ कि मेरे को जाना है। हाँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि एक बार तुम आओ मेरे साथ, बिकॉज मेरे को अभी हेल्प चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने चिली को बुलाया अपने पास। तो वो बोला कि आता हूँ मैं, ठीक है। वो आया, तब तक मैं 2 पुश कर चुकी थी, थर्ड पुश में ही केम और उसने मेरा हाथ पकड़ा है ना, पुश स्ट्रांगली। और वो बोला कि क्या हो रहा है मीनाक्षी। मैंने नीचे हाथ अपने लगाया, मैंने कहा कि यार, क्योंकि तपस्या का बच्चा टॉयलेट पे हुआ है तो मुझे याद था तपस्या की, तब ही फेल इनटू द टॉयलेट। तो मैंने कहा ये तो बच्चा ही आ रहा है, दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स। सो आई कैच होल्ड ऑफ द बेबी and he said, are you sure you have a child? I said, yeah, you know. And it was a double वो कॉर्ड का 2 लूप था। when she cried, तो मैंने कहा इसके तो ये लूप लगे हुए, बट इट केम आउट। मतलब इतना डराते हैं हॉस्पिटल वाले कि लूप डबल हो रखा है और पता नहीं क्या हो रखा है। दैट वाज सो स्मूथ, एक ऐसे थोड़ा सा हाथ लगने से वो निकल गया उसका गले में से। मैंने कहा इतना इजी था ये। और फिर मैं उसको लेके सो गई। ही कॉल तपस्या, उसने कहा कि बच्चा तो हो गया है। तो तपस्या ने कहा मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरे को और थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। तब तक मैं सो रही थी। तो आई वाज स्लीपिंग कि ठीक है अभी प्लेसेंटा प्लेसेंटा का वो आके देखेगी जो उसको करना है। मेरे को अभी नींद आ रही है, सो आई जस्ट स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर एंड बाय द टाइम तपस्या हैड कम। तो ये था सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। Wow. या Amazing. Can we have Tapasya on board, please? Yeah, tell me. Ji. So how was the जी, placenta बोलो. birth, Tapasya? Placenta birth was very smooth, very smooth. कुछ भी नहीं, because she had the baby on the toilet, तो वो already upright थी ही. And when the baby, when I asked her कि मीनाक्षी placenta push करने का मन कर रहा है, so she was like yes, it's coming. So मैंने birth stool तो मैं ले ही गई थी, birth stool पे उसने वो बैठ गई and placenta just popped out. Nothing, कुछ भी नहीं करना पड़ा. And placenta was very healthy and baby was healthy. फिर placenta को बोल में रख के baby को प्लेसेंटा लेके मेरा टॉयलेट सीट में गिर गया था। तपस्या ने निकाला उसको खींच के, और तपस्या मुझे बोले कि इसको खाना है तुम्हें। मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग? शी सेड नो नो, कुछ नहीं होता, ये धोने से साफ हो जाएगा। बट यू हैव टू ईट योर प्लेसेंटा। मैंने बोला अच्छा। मैंने खाया लेकिन उसको। नहीं, I mean टॉयलेट में गिरा था, मुझे तो लग रहा है कि बर्थ स्टूल पे आया था. मे बी आई एम So आप कंफ्यूज्ड. जो थी वो आप टॉयलेट सीट पर ही रेस्ट कर रही थी विद द बेबी? नहीं, मैं बेड पे थी। बेड पे थी. हाँ, फिर तपस्या ने, अब मुझे नहीं पता था कि प्लेसेंटा भी आता है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था। मेरे लिए मतलब सिर्फ बच्चे हो ही गया, आते, baby क्योंकि आ गया. मेरा हॉस्पिटल, हाँ हो गया मेरा काम। उसके बाद फिर तपस्या ने आके मुझे बोला कि मीनाक्षी प्लेसेंटा भी निकालना है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर क्या करना होगा अभी? तो शी सेड कि यू हैव टू पुश अगेन। तो फिर तपस्या ने लेकिन मुझे गुड़ का पानी वगैरह, अजवाइन और ये सब पिलाया कि ये सब पियो तुम, और उसके बाद व्हेन यू फील रेडी हमें प्लेसेंटा को निकालना है। तो मैंने बोला So अच्छा the ठीक cord was है। attached तब तक. Yes, हाँ cord was attached. Then we हाँ। got a photograph with placenta and the baby. Cord was attached full time. हम्म। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि प्लेसेंटा भी निकलता है, और इस तरीके से वी हैव टू, प्लेसेंटा आल्सो हैज टू बी बोर्न। दैट जबकि वाज, मैंने बताया था अपने सेशंस में, बट मीनाक्षी भूल गई. मैं वही सोच रही हूँ कि इनके ओरिएंटेशन में तो आता ही है कि भाई बर्थ ऑफ प्लेसेंटा इज देयर, तो इनको याद नहीं है. हाँ बट ठीक है, इतना तो हम माफ कर सकते हैं आपको कि आपने थोड़ा भूल लिए जो आपने पढ़ाई भूल किए गई थे. मैं। उस वक्त तो क्या याद रहता है, उस वक्त थोड़ी ना कुछ याद रहता है कि अच्छा। और इसलिए भी याद नहीं रहता ना क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे तो बच्चा ही दिया था ना लाके, कि वो कहाँ बताते हैं कि आपके प्लेसेंटा का हमने क्या किया है, कब हुआ है, कुछ भी नहीं बताते। तो वो एक्सपीरियंस नहीं था वहां पे ना। तो तपस्या ने बताया होगा सेशंस में, तो वो थ्योरी तो मैं भूल गई सब। नूपुर मैम ने मुझे, जब मैंने, नूतन मैम ने जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे
वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई थी ना, दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रीथ, जब तुम लेबर में आओ तो ऐसे ब्रीथ करो, ऐसे ब्रीथ। और वो डॉक्टर मुझे बोल रही है कि तुमने नूतन का सेशन लिया हुआ है, तुमको ब्रीदिंग करना नहीं आता है। कौन याद रख मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी मैं याद करने बुक निकाल के अच्छा कौन सी ब्रीदिंग करनी है। Wow. हाँ, या Then I think we made a placenta smoothie, थोड़ा सा placenta हाँ डाल के. हाँ Then chili cut the cord after a while. फिर उसके बाद हम फिर तो you were all right. मतलब your sister also came like one day after, I think. Swati नहीं, came. that That day had itself come. she came, yeah. हम्म, तो उसके बाद तो बाकी बहुत ज्यादा तुम्हें पोस्टमार्टम में मतलब इमीडिएट पोस्टमार्टम में कुछ लगने वाला था नहीं. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मीनाक्षी वॉज ईटिंग ड्रिंकिंग यूजिंग द टॉयलेट में. फिर आई वॉज बैक टू माई हाउस एंड उसके बाद पोस्टमार्टम तो फिर तपस्या So फिर आपने जो खाना बना बोन बना के सेरेमनी लाती थी, जो बोन सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी, फिर आपने मिल के तीनों बच्चों की एक साथ कर ली? वो तो अभी करी हमने जून मई में करी. अच्छा. जस्ट बिफोर आई केम हियर, या. मई में Wow. And how was that मई में, experience, क्योंकि Meenakshi? तपस्या ने बोला कि बोन क्लोजिंग सेरेमनी माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और तपस्या वाज इंसिस्टेंट ऑन दैट, शी वाज लाइक कि मेरे को करना है तुम्हारा। तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू माय पेरेंट्स हाउस फॉर 3 months टाइम। शी सेड इट्स ओके, जब तुम वापस आ जाओगी तब करेंगे हम, बट वो हम करेंगे। एंड दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को लगता है कि बहुत सारे इमोशंस ना उसके साथ वो रिलीज हो गए थे 9 months पे आते आते। एक तो इस बच्चे के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर जब देख रही थी कि अच्छा अब ये बड़े हो गए हैं, मतलब ये थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद से सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ऐसे अपने प्लान बना के बैठी थी कि अब मैं ड्राइविंग सीखूंगी, अब मैं डांस क्लास ज्वाइन करूंगी। मतलब मेरे पास फुल ऑन प्लान था कि अब तो मेरे को 4-5 घंटे तो मेरे खुद के हैं, तो मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी। और सडनली मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वो तो एक्सेप्टेंस आ गई थी, बट उसके बाद फिर इन दोनों के साथ रहने के इतने यूज टू थे। सो थर्ड चाइल्ड, तो जब इनको टाइम नहीं दे पा रही थी और उसको टाइम देना था, उसमें तपस्या वाज वेरी कि तुम इस बच्चे को थोड़ा टाइम दो, इट्स ओके इट्स ओके। तो वो बार बार मेरे को बोल रही थी कि अभी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। उनका ध्यान रखने के लिए देर मासी मामा, माय मदर ऑल्सो हैड कम आफ्टर 2 months, सो शी वाज लाइक उनके पास बहुत सपोर्ट है, तुम अभी इस बेबी के ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी, बट उन बड़े वालों के साथ ऐसा लग रहा था कि मतलब इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अभी 2 ही साल के अभी तो हैं, बहुत छोटे ही छोटे। है, मैंने तो पूरा वक्त भी नहीं हाँ बिताया इनके साथ। हाँ वो सारी चीजें आ जाती, सही बात है। हाँ हाँ, वो मदर गिल्ट बहुत स्ट्रांग हो गया था। मतलब उनको नहीं फर्क पड़ रहा था, वो खुश थे, मौसी आ गई है, इतने जो सारे बोल लोग रहे हैं हैं उनके पास। वो हाँ, वो खुश थे। एब्सोल्युटली। बट तो बहुत वो आपकी मतलब डॉक्टर को पता चला कि नहीं आपने बर्थ कर लिया? हाँ, इनकेस इफ उनको शी इज पता लिसनिंग। चला। अच्छा. हाँ हाँ, उनको पता चला, फिर उनको लेके आए, दिखाया, तपस्या ने फिर दिखाया, देखो ये प्लेसेंटा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अच्छा. तो मतलब उनको हाँ, दे वो अम्यूज थे वो। अब बहुत छोटे भी थे ना, 2 साल के, क्या उनको अच्छा. सब अच्छा. चीज उस वक्त ऐसी होती है कि हाँ अच्छा नया बच्चा भी आ गया, ठीक। मेरी डॉग सबसे ज्यादा काम थी। तो जब पहले ये दोनों आए थे ना, मैं हॉस्पिटल चली गई थी, और हॉस्पिटल से 3 दिन के बाद 2 बच्चे लेके आ गई, तो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी कि ये दोनों आ गए और पूरा स्पेस ले लिया है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, सब कुछ खत्म उसका। तो बट इस प्रेगनेंसी में बिकॉज उसको याद था कि कैसे बचा है, और वो मेरे साथ थी पूरा टाइम, तो उसका जो बॉन्डिंग था फ्रॉम चाइल्ड वाज वेरी वेरी स्पेशल। एंड शी वाज वेरी काम, बहुत ही कामली वो मतलब बच्चे के साथ। अभी भी उसका ऐसा ही है कि ये तीसरे वाला बच्चा उसके कान खींचे, नाक खींचे, पूंछ खींचे, शी इज कंफर्टेबल।
लेकिन इन दोनों बच्चों के साथ यार स्ट्रॉन्ग राइवलरी की कहाँ से आ गए हैं दो लोग। अच्छा. तो ये था। हाँ And so now your तो children are 2 and 1, right? 2 साल के ऊपर हो हाँ गए उनके. हाँ 3 and 1 Three and 3 and 1 okay. yeah. Okay, that was amazing. Wow, Tapasya, you Hmm. inspired her to do Yes. something which was like so Yeah. inbuilt in her. Like every woman I- would do this if she's left alone. हाँ I didn't do anything. She's really really brave. मतलब मैं खुद ट्विंस अब मेरे 6.5 7 साल के हो रहे हैं, फिर भी अभी भी ओवरवेल्म्ड हूँ उनको बड़ा हम्म, करते करते. Like हम्म, having one more after twins is huge. And I could see her overwhelmed. मतलब इतना pregnancy में भी postpartum में भी she was always into so much. क्योंकि बच्चे भी हैं, घर भी है, घर तो चलो संभल रहा है, हेल्प अच्छी है, that is going on, but 3 kids, she was pretty overwhelmed. I mean, कभी कभी खाना भूल जा रही है, कभी कभी उसको याद नहीं है has she showered or not, then फिर बाद में बोलना पड़ रहा है मीनाक्षी खुद की तरफ भी देखो, ड्रिंक वाटर, इट्स ओके, बेबी ऐसे करते हैं, बेबीज रोते हैं, इट्स ओके. हर सेशन में तपस्या मेरे से मिलने के लिए आती थी पोस्टपार्टम, वो 45 डेज तक शी सेड वो आएगी, और मैं ना क्लिंग कर रही थी तपस्या के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त शी वाज माय मदर. तो मैं मतलब पूछती थी इससे, तुम आओगी ना, तुम अगली बार तुम कब आओगी, तो शी वाज लाइक नहीं नहीं मैं अभी आना है, मेरे सेशंस बाकी है, मैं आऊंगी. तो मेरे को मतलब पहली बार मैंने फील किया स्नेहा कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, हाउ डू वी फील सपोर्टेड एज वुमेन. और बर्थ के टाइम ये कितना ज्यादा जरूरी है. व्हाई सो मेनी ऑफ अस आर फेलिंग बिकॉज Tapasya used to remind me that you can say whatever you want, I am by your side, this is your birth, you tell me how do you want it. क्योंकि मैं इनको बोलती थी अच्छा ठीक है, जैसे जैसे आप बोलोगे ठीक है, तो she would throw the question back on me कि no no don't take it like that, you decide how you want it to happen because this is your birth and let me know what support you need in this. तो मैंने ये भी कॉन्वर्सेशन ये हैड अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट अथॉरिटी. एज वुमेन हम कैसे अथॉरिटी लेते हैं इन सच सटल वेज, और हम कैसे सबमिट करते हैं. तो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाज अनदर चैलेंज बिकॉज मेरे को पहले दिन का याद था कि बॉडी टायर्ड हो गई है, अभी नर्स आके ले जाएगी फॉर्मूला पिला के, 3 घंटे के बाद कहेगी कि अब दूध पिलाओ, और तपस्या बोल रही है कि दूध पिलाओ दूध पिलाओ. हाँ. सो आई एम लाइक अच्छा. तो मतलब वो ना मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ. मैंने कहा यार मेरे को आराम मिलना चाहिए ना, अभी बोल रही दूध पिलाओ. तो फिर लेकिन तपस्या लाइक नहीं बच्चों को दूध पिलाओ. फिर पिलाया मैंने फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कर दिया था बिकॉज वो ब्रेन को लगता है ना कि नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने तपस्या को बोला कि मैं थोड़ा सा फॉर्मूला पिला देती हूँ. तो शी सेड कि अच्छा ठीक है कोई नहीं. फिर दूसरी बार ऐसा हुआ तो शी सेड मीनाक्षी डोंट, हाँ दिस यू आर गोइंग समवेयर एल्स, तुम फॉर्मूला पे मत डालो बच्चे को, फीड So योर Tapasya and मिल्क. I can relate to this because we deal with this every time. मैं और तपस्या पूरा सारा सपोर्ट नेचुरल बर्थ का कर लेती है एंड देन द मदर गिव्स अस सरप्राइज मैसेजेस, हमारा फॉर्मूला भी चल रहा है एंड वी आर लाइक ओके कम ऑन गर्ल्स, you don't do this, but it's overwhelming. myself. तो शी वुड से तपस्या वुड से नो नो तुम्हारे पास है टाइम, दोनों बच्चों को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पे फोकस करो, बेबी को फीड करो उसको. अच्छा दिस बेबी ऑफ माइन वो भी बहुत, उसने फॉर्मूला थूकना शुरू कर दिया था, तो वो लेती भी नहीं थी. मेरी बेटी पहले भी नहीं लेती थी, जिसकी वजह से मैं माथा मार पाई कि मुझे मतलब नेचुरल चाहिए. फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बेटा मेरा थोड़ा मैं सबमिसिव था, वो मतलब जो पिलाओगे पी के, और सोच नहीं था कोई. बट दोनों बेटियां दे वर वेरी स्टबर्न, पहले वाली भी और ये वाली तो और ज्यादा. तो शी हैड लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो तपस्या ने बोला फॉर्मूला की वजह से हुआ है, फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड, तुम बंद करो फॉर्मूला पिलाना इसको. तो फिर तो ऐसे हो गया था कि पिला ही नहीं सकते, मतलब दूध ही पिलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है.
एंड तो आपने कहा था बहुत यार, कि बहुत हैंड होल्डिंग होता है। जी जी, सो आपने कहा था कि आपको पहले बच्चों में कनेक्शन फील नहीं हुआ फॉर एक्स वाई जी रीजन, तो ये बच्ची के हम्म साथ में आपका कैसा था? हम्म डिड यू फील बहुत कनेक्टेड, लव स्ट्रांग एट था, फर्स्ट बहुत। साइट? कि दोनों बच्चों के लिए भी इतना मतलब प्यार आ रहा था, उन दोनों के लिए भी ऐसे लग रहा था या कि ऐसे लगा मुझे कि ये लोग ये चीज मिस किए हैं ना, तो मैं और ज्यादा उन दोनों को, और इसलिए भी मैं और उन दोनों को चाहती थी अपने पास रखना, कि ये लोग भी ये वाला जी, दिस लव ऑफ माइंड, यू नो, थैंकफुली वी हैव गॉट अनदर चांस जहाँ पे हम उस बर्थ ट्रॉमा को रिवाइव कर सके। तो वाओ, मैं बड़ा उनको फिर से, मैं मतलब अपने पास रखती थी, दूध पिलाती थी, तीनों एक जितना दूध पीते थे। तो मेरे को था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों को पिलाऊंगी, कोई बात नहीं है। बस ये था कि थोड़े बड़े थे तो उसके हिस्से का भी पी जाते थे, पंप कर करके पहले उसके लिए रख लेती थी, फिर अच्छा। इन दोनों को पिलाती थी। तो पंपिंग करना वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत अच्छे से आ गया था कि अच्छा ठीक है, पंप करके रख लो। तो वो फिर काम आ गया, तो इसको पिला देती थी, फिर इन दोनों को पिलाती थी, पर इन दोनों को भी बराबर पिलाया मैंने। तो मेरे लिए मतलब हीलिंग बहुत हुआ मेरा और हमारा सबका कलेक्टिव, because they got my raw milk first time which they couldn't during the first pregnancy. So I was very happy कि अभी इनको फिर से वही वाला, you know, they are able to access that. तो वो या था, इंटरनल हीलिंग बहुत हुई। और टीयरिंग वेयरिंग मुझे कुछ नहीं हुआ था, ब्लीडिंग वगैरह भी मुझे नहीं हुई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी आई वाज फाइन, बट इस वाली में भी मुझे कोई पेन नहीं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ, और आफ्टरवर्ड्स भी किसी भी तरीके का पेन मुझे नहीं हुआ था। सो आई थिंक वो इनर वर्क है ना, वो बहुत हेल्प करता है आपको, जी, जब हम थोड़ा अवेयर और कॉन्शियस रहते हैं ना। क्योंकि लास्ट मोमेंट प्रेगनेंसी था तो एवरीबॉडी वाज लाइक, तुम्हारा कितना इमोशनल टर्मोइल चल रहा होगा ना अभी। जी, बट आई वाज वेरी काम, स्नेहा, आई वाज वेरी काम, मुझे 2-3 दिन लगे एक्सेप्ट करने में। आफ्टर दैट आई वाज वेरी काम कि ठीक है, लेट इट बी, कोई वाओ। बात नहीं है। So in तो this whole thing of yours, I see your husband to be standing strong like a या rock. आपके हस्बैंड या ने मतलब जिस तरीके का सपोर्ट किया आपको, ज्यादा उतना इनपुट ना रहने के बावजूद भी, बट ही वाज हाँ देयर। हाँ, उससे ऐसा होता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कर रही हो, बस मुझे ये बता देना कि मुझे क्या करना है। ऑफ्ट रिपीटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दी हस्बैंड्स, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, बाकी तो ये करते हाँ। हैं। या तो वो था उसका। तो वो दैट दैट इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो कभी ऐसा होता है ना कि उसकी तरफ से कोई वो नहीं आता था कि ये करें या ऐसे करें या वैसे करें, बिकॉज उसको था कि तुम करो जो तुमको करना है, और बस लेट मी नो कि मुझे क्या करना है, सो दैट आई एम क्लियर एंड प्रिपेयर्ड। तो वो उसको था कि मेरे को मेरा पार्ट समझा दो। सो ठीक है, वी आर सॉर्टेड। Yeah. And there's one more last question before we end. So the difference you said in the first birth and the second birth was the support you got. So how was it to have a support from a midwife? Then the वेरी doctor in the इंपॉर्टेंट, hospital. वेरी वेरी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब फिर से आपने एक बताना मुझे। हॉस्पिटल बर्थ देखा है स्नेहा, आप? कैन यू? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हम्म। हाँ। सो आपने एक हॉस्पिटल बर्थ हाँ, आई देखा, कैन, आई कैन। आपने एक हॉस्पिटल बर्थ देखा और आपने एक होम बर्थ किया। आपने हम्म ही किया, खुद ने किया। तो ये दोनों केस में आपको हम्म एक मिडविफरी केयर हम्म मिला और एक जगह आपको एक केयर फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट मिला। तो ये दोनों में क्या अंतर था, हम्म मतलब व्हाट वाज द डिफरेंस यू कुड फील? ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। तो द फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो पहली डॉक्टर के पास मैं गई थी, वो तो आई डोंट इवन वांट टू टॉक सपोर्ट ऑफ एनी काइंड, ये वो कंप्लीटली फियर था। जितनी बार मैं जाती, मेरे को ऑर्डर आके भेज रही थी, और मैं डर ही रही थी। लेकिन जो जब मैं सीताराम में गई, वहां पे मुझे मिला था सपोर्ट, ऑनेस्टली मेरे को बहुत सपोर्टेड फील हुआ था, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के मामले में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ फियर दैट इज बीइंग क्रिएटेड। वहां पे दे वर नाइस टू मी,
लाइक यू नो दे वर नॉट, जैसे लास्ट में उन्होंने मेरी मेडिसिन भी बंद कर दी थी 36 वीक पे आके कि इफ यू डोंट वांट टू टेक देम इट्स फाइन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेबर रूम में उन्होंने मुझे दिखाया चीजें कैसे प्रोग्रेस हो रही है। नर्सेज तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन वो सपोर्ट अगर मैं अपने सेकंड बर्थ से कंपेयर करूं, दैट वाज नॉट अ सपोर्ट एट ऑल। द वे माय डॉक्टर ट्रीटेड मी वाज कंप्लीटली कम्स फ्रॉम जहाँ पे हमारी मदर्स होती है ना, या फिर और जो हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, तुमको नहीं पता है कि तुमको क्या करना है, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। और अगर हमने नहीं बताया और तुमने वो फॉलो नहीं किया, अगर तुम रिबेल बन रही हो तो विल स्नब यू, विल ह्यूमिलिएट यू एंड यू कांट हैव अ वॉइस ऑफ योर ओन। हमें नहीं पता करना है कि तुमको कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं फील हो रहा है, सबको एक ही जैसा फील होता है और तुम वैसे करो बिकॉज वी हैव द डिग्री, तो तुम वो करो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। सो दैट वाज द मॉडल दैट दे वर वर्किंग ऑन। और वो मैंने तपस्या को बोला हुआ है कि मुझे पता है मैंने क्यों वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया वो अथॉरिटी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा आदत थी एक अथॉरिटी फिगर अपने सर पे बैठाने का, जो मेरे को लगातार बैश करता रहे कि तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं आता, यू कीप योर माउथ शट। एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सेकंड बर्थ में I knew my power and I knew who can speak to me, like my boundaries were very very clear. I couldn't like when even the doctor said कि तुम्हारा 40 वीक में हो गया, I told her, same doctor जिसके सामने मैं पहली बार मैं बोल भी नहीं पा रही थी, same doctor, and I told her no, I don't want to go for induction. And to my surprise she was like okay fine, so if you want to wait we'll wait, right? So that when our perception changes, लेकिन वो मिडविफरी सपोर्ट मेरे को क्योंकि तपस्या ने दिया था, मैंने भी आई डिड द वर्क, मतलब इतना इन्फॉर्म अवेयर करके एंड वाज वॉकिंग ऑन माय हार्ट पाथ। लेकिन तपस्या ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। तपस्या सेड यू हैव द राइट टू से नो, इफ somebody is feeling offended it is their problem not yours, this is your birth, nobody can understand it better than you, this is you and your baby walking together, so if anybody is trying to dismiss your experience don't talk to them. तो ये जो पावर थी ना सटल, वो जो ऐसे कि मैं हूं तुम्हारे साथ, जब अल्ट्रासाउंड के लिए भी उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला, मैं दिल्ली गई थी कैब लेके, और अगेन 37-38 वीक था, तो शी सेड कि तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। उस अल्ट्रासाउंड के लिए मैं पूरा दिन बैठी रही, थैंकफुली मेरा नंबर नहीं आया, एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज आल्सो टॉकिंग टू तपस्या। तपस्या said you come from there, we don't need this ultrasound, you don't have to have this ultrasound। मैंने बोले यार she's sitting on my head, what do I say her? She said tell her I don't want to do this, why do you want, we have all the information, हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना था, we have all the information कि बच्चा क्या है कैसा है, why do you want to go for another ultrasound, वो तुमको और तंग करेगी। that gave me confidence। और मैंने दूसरी कैब, but the doctor was also constantly feeling, she was like I'm sorry I kept you waited, but तुम देखो, और एज अ वुमेन हमें कितनी आदत है, मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैम इट्स ओके इट्स फाइन, नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड कोई बात, and that's when I got hold of myself कि What are you where doing? is it coming from, right? So yeah, when हाँ why am I doing, she's right। उन्होंने मेरे को पूरे दिन यहाँ बिठा रखा है, मैंने पानी तक नहीं पिया, और वो इस अल्ट्रासाउंड को लेके शी इज नॉट टेलिंग मी कि तुम घर चली जाओ, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, यू हैव 2 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, वो नहीं बोल रही है मेरे को, और वो मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं मैम इट्स ओके आई अंडरस्टैंड, नहीं कोई बात नहीं। तो फिर तपस्या ने कहा कि वी डोंट नीड दिस, तो मैंने कैब करा के एंड आई टोल्ड हर आई थिंक आई एम टायर्ड नाउ एंड आई वांट टू गो होम। शी सेड अच्छा ठीक है जाओ, इट हैज बीन लॉन्ग डे, तुम इतना लंबा चल के भी आई हो, ये है वो है। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना था ये, एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट, बोल के मैं आ गई कैब में। बट इतना इट टेक्स सो मच ऑफ सपोर्ट वो वॉइस को अंदर से मतलब बाहर निकलने के लिए। हमें अथॉरिटी के सामने चुप होने की इतनी आदत है, हम इतने सटल तरीके से, और यहाँ पे तपस्या मेरे को स्पेस क्रिएट करके इतना मतलब देयर वाज इतना स्पेस, और वो मेरे को बोल रही थी कि तू बोलती नहीं है, तेरे साथ प्रॉब्लम ये है, यू आर नॉट टेलिंग मी व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू आर नॉट टेलिंग मी व्हाट आर यू एक्सपीरियंस।
मैंने बोला यार मेरे को सब ठीक लग रहा है, मतलब मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, व्हाट इज इट आई शुड बी टेलिंग यू, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, पेन ही तो हो रहा है, ठीक है क्या बोलना है। शी सेड नो नो नो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, टेल मी इफ यू फील कि मेरे से नहीं लिया जा रहा है पेन और तू आ जा मेरे पास, यू कैन टेल मी। Yeah. तो मैंने कहा या यू नो व्हाट, मेरे को जब फर्स्ट लेबर में पेन हो रहा था ना, तो डॉक्टर ने मेरे को आके बोला कि इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट द ओनली पर्सन जिसके बच्चा हो रहा है, क्यों तू इतना चिल्ला रही है। एंड इट्स देयर वर लॉट ऑफ सच Yeah, so मोमेंट्स all जो मेरे those को things were connecting to you कि यार मैं अगर अब मैं इनको बुला ली तो मेरा मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मैं वीक हो हाँ जाऊंगी, all those things. Yeah, absolutely. बहुत कुछ कनेक्ट हो रहा था मेरे को। तो फिर मैंने तपस्या को बोला थैंक यू फॉर ओपनिंग दैट फॉर मी, Yeah. बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मैं चिल्ला सकती हूँ, मेरे को Yes. मतलब मैं शेयर कर सकती हूँ, एंड आई कैन लेट ऑल एक्सपीरियंसेस कम आउट जो भी मेरे को। सो आफ्टर माय पोस्टपार्टम मैं हर मीटिंग में तपस्या के सामने रोई थी, हर मीटिंग में मेरे को मतलब इतना मैं इमोशनल हो रखी थी। सो मैं हर बार रोती थी उसके सामने, एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि मेरे को मतलब let these tears come out, So yeah, it was like that. She was a very strong support system. After my postpartum, I needed her the most, and she was there. She hand-holded me throughout कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, कैसे इसका ध्यान रखना है। ध्यान तो खैर मुझे पता था, बट बच्चे को दूध पिलाना है, केयर करना है, मेरे लिए खाना बना के लेके आती थी। सो देयर वर लॉट ऑफ मिडवाइफरी, मतलब मुझे तो लगता है ना स्नेहा कि हमने इतने बड़े ट्रेजर को कैसे हम लोग रिडिक्यूल और डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं इतना। Absolutely, absolutely. एक औरत वो के जो लिए जो इतना जानता है, जो जरूरी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। करता है, वही बता सकता है व्हाट इज मिडवाइफरी केयर। जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसे आपने किया व्हाट है, इज वही मिडवाइफरी, बता सकते हैं कि एब्सोल्युटली। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। Thank you so much for opening your आई heart एम ग्लैड। and giving your time, valuable time to us, leaving your three kids there, and your husband, the one who's supporting you so much. जो हमें सुनने के लिए, ऑल ऑफ दोज आई वांट टू से Yes, ऑन यू thank एंड you so much, everyone, for एवरीबॉडी हैज joining. कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So, Saman, Swati, Mary, Mubina, Kanu, Tapasya, Kriti, Nupur, all of time पे दिख नहीं रहा है, but thank you so much for coming and yeah. We are listening glad, to this Meenakshi, story. we are glad that we got this opportunity क्योंकि ऐसी stories मिलती नहीं है सुनने के लिए, and now we have this power packed story to keep many women going कि ठीक है, पता चला नहीं पता चला, that's all Hmm. right. You're doing great. Pregnancies Hmm. are so जो बच्चा मैनिफेस्ट करता है and the God is the one who creates it, तो हमारे पास भी उतनी ताकत आ जाती है। That's your story, वो ग्लोरीफाई करती है चीजों को कि आप अपनी चीजों को कर सकती हैं। You do not need an external validation to do things. Absolutely. Yeah, Thank you yeah, so much once again. So this would be put up on YouTube as well, so we can share it with many friends and families. And Meenakshi, thank you so much for being yeah. here once again. See you next time, everyone. Thank you so Thank much. you so much, all of us. Can Thank I, you for can, coming. can I add something? Sorry. Yeah. Hmm. So, Abhi, recently, I accidentally ended up being a support for Madiha and Sitaram Bhartiya. Hmm. तो वहाँ पे भी